Hello, everybody. Good evening, and welcome back to Lit Up with Annie. We've been doing this series of history of English literature, overview of all the ages, both for JKPSC 10 plus 2 lecturer English and also for UGC NET English. Um, the last session that I took was of Victorian age. So I said that okay, we will have another session on that, a second part of Victorian age. But then, while I was going through it, I felt that only the names, few names that I had to give you were left from that age. So I did not make another session on it because anyway, we're going to talk about the different writers from that age in the other units. Otherwise, the overview I had already given you in the last session. So today I'm going to start with post-modern age. Modern age has already been covered by Ravi sir. So you can go and check that out. I'll put the later on after the class, I'll put the links to the classes also in the description box. Okay, so let's start with the post-modern age. I'll take you to the slides. And also, we are beginning with the full course from 20th of July for NET English, or if you're preparing for any other exam, let me know, and we can figure things out. So I'll tell you about that towards the end. Okay, post-modern age. मॉडर्न एज कब खत्म होता है? मॉडर्न एज हम कहते हैं शुरू होता है इन द 20th सेंचुरी, बट जो पीक मॉडर्न एज है वो शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, 1914 ऑनवर्ड्स. बट फिर आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होता है पोस्ट मॉडर्न एज. इट बिगैन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, so particularly in the late 1940s and early 1950s. और मोमेंटम ये गेन करता है 1960s 1980s में. अब पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, इट इज नॉट अ सिंगल मूवमेंट. ऑल्सो इट्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू प्रेजेंट, so it continues. So if we have to talk about postmodernism, we can go on and on and on, but in this session मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूंगी कि क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बेसिकली क्या है इसका, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो पोस्ट मॉडर्न थ्योरी या पोस्ट मॉडर्निज्म में आती है, वो आती है ग्रैंड नैरेटिव्स के साथ एक डिसइल्यूजनमेंट. So it reflects that, the disillusionment with grand narratives, जैसे कि progress, history, rationality, हर चीज को they look with this question वाली eye. जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आता है. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या करते हैं वो लोग? डीकंस्ट्रक्ट करते हैं टेक्स्ट को, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढने की कोशिश करते हैं. पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ पैरेलल मूवमेंट, ठीक है. It also overlaps with the late modernism, but there's a lot of difference in its tone of irony, playfulness, radical skepticism. अब हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ वर्ल्ड वॉर्स में, दोनों में ही. तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी डिसइल्यूजनमेंट था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी डिसइल्यूजनमेंट था. किस तरह का डिसइल्यूजनमेंट? दैट पीपल वर इन दैट स्टेट, नो दैट व्हाई ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, व्हाई आर सो मेनी पीपल डाइंग, what is the cause behind all of this and what are they gaining out of it. Even the soldiers themselves, first modern age में आप देखते हो war poets आते हैं, तो वो first hand experience हमें देते हैं war का, and they were all disillusioned, they all died fighting, who could have bloomed like a literature person. They died very young. लेकिन जो ये डिसइल्यूजनमेंट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद था, वो था फ्रैगमेंटेशन था, है ना. लेकिन वो ऐसा फ्रैगमेंटेशन था दैट इट वाज न्यू फॉर एवरीबडी, सो पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग इट, पीपल वर रनिंग अवे फ्रॉम इट एंड दे वर ट्राइंग टू सी दैट व्हाट इज बीइंग लॉस्ट इन ऑल ऑफ दिस. हमारा जो पहले एजेस था, ट्रेडिशनल व्यूज था, एक स्पिरिचुअलिटी थी, फेथ था, वी आर लूजिंग ऑल ऑफ दैट. बट when we come to postmodern age, we see that the fragmentation is of a very different kind. There is more acceptance here. ऐसा ही है, चीजें ऐसी ही हैं. वेटिंग फॉर गोडो को देखो,
You all must have read that text. What happens there? We do see fragmentation in the entire text. We do see that existential crisis in the text, but it is more of like this is how it is. There's an acceptance of it. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो होलोकॉस्ट हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी। होलोकॉस्ट क्या है? जो ज्यूज को हिटलर ने सारे के सारे ज्यूज को मारने का प्लान बना लिया और सारे ज्यूज को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। दे स्टार्व्ड टू डेथ, दे वो बर्न्ड अलाइव। आप लोग जाके देखोगे अगर इमेजेस, यू विल बी इन टीयर्स लिटरली। बहुत सारी मूवीज बनी हैं इस पे, कोई ना कोई देखना, ज़रूर देखना अगर नहीं देखी है तो। हिरोशिमा नागासाकी जो बॉम्ब गिराया था यूएस ने हिरोशिमा नागासाकी पे, जिसका जो इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट, वो अभी भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो चीजें हुई, इट शैटर्ड बिलीव्स इन ह्यूमन प्रोग्रेस, कि ये है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के नाम पे एटम बॉम्ब्स गिराओगे, तो अगर ये प्रोग्रेस है तो हमें नहीं चाहिए। तो इट शैटर्ड द बिलीव्स इन ह्यूमन प्रोग्रेस, in reason, that what are the reasoning that you're giving on such a disaster that you have created? What is the reason? कोल्ड वॉर चल पड़ा, न्यूक्लियर एंजाइटी आ गई ना लोगों में कि अगर एक न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया हिरोशिमा नागासाकी पे, जिसने उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब तो कभी भी गिराया जा सकता है और पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है। तो एक न्यूक्लियर एंजाइटी बनी रही। डीकोलोनाइजेशन, सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहे थे, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही थी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स इम्पैक्टेड द लिटरेरी इमेजिनेशन। तो ये अगर एक बैकग्राउंड है तो सोचो लिटरेचर में क्या होगा। लिटरेचर में यही सारी चीजें आएंगी ना। हमें पार्टीशन लिटरेचर देखने को मिलता है अगर हम इंडियन की बात करें। डीकोलोनाइजेशन तो हमें पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर देखने को मिलता है। वी सी विमेन फेमिनिस्ट टेक्स्ट्स, सिविल राइट्स मूवमेंट पे, सफ्रगेट पे, एआई पे। खैर टाइम मशीन पे तो पहले से भी आ रहे थे टेक्स्ट्स। कंज्यूमरिज्म का राइज हो गया, मास मीडिया बढ़ने लगा तेजी से, ग्लोबलाइजेशन हो गया, डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया। देखो इंडिया में कितना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, एक डिजिटल रेवोल्यूशन। हर चीज ऑनलाइन अब होने लगी और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, इट्स अ वेरी लेटेस्ट फिनोमेना एंड इंडिया इज वे अहेड देन मेनी कंट्रीज इन दिस डिजिटल रेवोल्यूशन। ये यूपीआई इंडिया, तो इतनी सारी चीजें बढ़ रही हैं। अब इससे क्या हुआ, इट ब्लर्ड द बाउंड्रीज बिटवीन हाई एंड लो कल्चर। कल मैंने पोस्ट ह्यूमनिज्म की बात की थी एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग, क्योंकि वो हम देखते हैं ना पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में, दिस अगेन ब्लरिंग ऑफ द बाउंड्रीज बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड मशीन्स, नेचर एंड कल्चर, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स आर नो लॉन्गर एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। सब कुछ ह्यूमन बीइंग्स के अराउंड नहीं रिवॉल्व कर रहा। ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो इंटर रिलेटेड विद सो मेनी थिंग्स अराउंड अस, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, कल्चर हो, बहुत सारी चीजें। तो फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा थे। जैसे मैंने कहा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, डीकंस्ट्रक्शन का, डेरिडा, फूको जो पावर डिस्कोर्स की बात करते हैं। लियोटार्ड इज अ वेरी बिग नेम जिन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म की ही बात की है। ठीक है, ये थे वो जिन्होंने ग्रैंड नैरेटिव्स को रिजेक्ट किया। ही शोड इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। देन बॉड्रिलार्ड ने सिम्युलैक्रा की बात की कि हर चीज़ जो है आसपास हमें ऐसा पता ही नहीं लगता कि क्या चीज़ रियल है, क्या चीज़ कॉपी है। इतनी ज़्यादा कॉपीज प्रोड्यूस हो रही हैं वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ब्रांड्स की कॉपीड चीज़ें आती हैं, जैसे नाइकी है तो उल्टा टिक आ जाएगा, एडिडास, एबीबास, इतनी सारी कॉपीज क्रिएट हो गई हैं दैट वी नो लॉन्गर अंडरस्टैंड कि रियल क्या है। सिम्युलैक्रा, दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ सिम्युलेशन, ही सेड। इन्होंने डिज्नीलैंड का एग्जाम्पल लिया था। फिर जेमसन, इन्होंने कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म पे बात की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जब हम पोस्ट मॉडर्न थ्योरी को भी एक्सप्लोर करते हैं। अब आता है कि इस पूरी एज पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है।
Intertextuality is a very big characteristics, जैसे डायलॉग्स विद प्रीवियस टेक्स्ट्स, फॉर एग्जांपल एंजेला कार्टर्स रीराइटिंग ऑफ फेरी टेल्स। इंटरटेक्चुअलिटी होता क्या है कि एक टेक्स्ट में आपको मल्टीपल रेफरेंसेस मिल जाते हैं और टेक्स्ट्स के। जैसे वेस्टलैंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वेस्टलैंड में टीएस एलियट ने पता नहीं क्या क्या संस्कृत से कुछ ले लिया है, कुछ कहीं से, कुछ क्रिश्चियनिटी से, कुछ बुद्धिज्म से, है ना, लिया हुआ है। तो इट्स अ डायलॉग विद प्रीवियस टेक्स्ट, मतलब जैसे डेरिडा ने कहा, या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट नेचुरली यूजुअली कहते हैं कि देयर इज नथिंग आउटसाइड टेक्स्ट। डेरिडा ने स्पेसिफिकली कहा था। उनका क्या मतलब था कि हर चीज टेक्स्ट के अंदर है। हम लोग कोई भी बात कर रहे हैं वो टेक्स्ट के अंदर ही बात कर रहे हैं। कंटिन्यूसली टेक्स्ट चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इवन अनदर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट सेड the same thing, कि इट्स अ कंटिन्यूएशन, डायलॉग, डायलॉजिज्म की बात जैसे बाख्तिन करते हैं कि इट्स अ डायलॉग विद द प्रीवियस टेक्स्ट। तो डायलॉग कभी खत्म नहीं हो रहा। फिर आती है बात मेटा फिक्शन की। मेटा फिक्शन, फिक्शन अबाउट फिक्शन, या फिर टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन इट्स ओन फिक्शनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल जॉन फाल्जेस द फ्रेंच लिeutenant's वुमन, इसमें ऑल्टरनेटिव एंडिंग भी है, आपको जो पसंद वो देख लो। कि फिक्शन लिखा है जिसमें ऑथर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, टेक्स्ट जो है वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो एक फिक्शन टेक्स्ट है। पैस्टिश, इट्स अ जक्सटापोजिशन ऑफ जॉनर्स, स्टाइल्स एंड वॉइसेस, जैसे कि सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल, अलग अलग जॉनर्स, अलग स्टाइल्स, डिफरेंट वॉइसेस इन वन। फिर आयरनी, ब्लैक ह्यूमर। ब्लैक ह्यूमर इज समथिंग, एक ऐसा ह्यूमर जो क्रिएट होता है किसी सीरियस सिचुएशन से, जैसे डेथ या सिकनेस में। कोई ऐसा सिचुएशन हो जाए जहाँ पे हंसी आ जाए, एक डेथ का सीन चल रहा है लेकिन हंसी आ रही है, ब्लैक ह्यूमर। ठीक है, तो डीपली आयरॉनिक, ऑफन मॉकिंग टोन होती है, जैसे कि जोसेफ हेलर का Catch-22। फिर फ्रैगमेंटेशन तो है ही है एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक। टेम्पोरल डिस्टॉर्शन, पता ही नहीं लगेगा कि अभी कोई फ्लैशबैक चल रहा है, अभी हम फ्यूचर में पहुंच गए, अभी प्रेजेंट चल रहा है। बहुत सारी टेम्पोरल डिस्टॉर्शंस। पैरानोया, पैरानोया होता है डिस्ट्रस्ट, हर एक चीज़ में आपको लगेगा ये गलत है, वो भी गलत है। एक पैरानॉइड सेंस आपको आएगी कि ये कहीं मुझे ही तो नहीं मार रही है, ये सब मुझे ही देख रहे हैं, कईयों को ऐसे हो जाता है। मैजिकल रियलिज्म, सलमान रश्दी है एक मेजर जिन्होंने मैजिक रियलिज्म का यूज़ किया है, या फिर गार्सिया है, मार्क्वेस, ब्लेंडिंग ऑफ मैजिक एंड द रियल। फिर हाइपर रियलिटी है, बॉड्रिलार्ड, तो रियलिटी सिम्युलेटेड बाय साइंस और इमेजेस। क्या रियल कॉपीज जो है वो ज़्यादा रियल लग रही हैं, रियल से भी ज़्यादा। प्लूरलिज्म और पॉलीफेनी, मल्टीपल वॉइस आपको मिलेंगे एक ही टेक्स्ट में। ऐसा नहीं होगा कि एक अथॉरिटेटिव कोई वॉइस है, आपको हायरार्की का भी डिस्टॉर्शन मिलेगा। तो सर्वेंट भी है, विमेन भी है, जिनको पहले मार्जिनलाइज किया जाता था, वो सारी वॉइसेस अब आपको मिलेंगी, पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे अलग अलग, तो मल्टीपल नरेटर्स मिलेंगे। अब कौन कौन सी जॉनर्स या कौन कौन सी फॉर्म्स इसमें हैं, तो तो वी हैव पोस्ट मॉडर्न नॉवल, है ना, एक सेंट्रल फॉर्म, बहुत एक्सपेरिमेंटल या जॉनर को ब्लेंड करने वाला। फिर पोस्ट मॉडर्न ड्रामा है, पोस्ट मॉडर्न पोइट्री है, जैसे लैंग्वेज पोइट्री, इसकी मैं भी बात बताती हूँ आपको, या फिर कन्फेशनल पोइट्री, सिल्विया प्लाथ ने लिखी है, परफॉर्मेंस पोइट्री। फिर साइबर पंक और स्पेक्युलेटिव फिक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न एज में स्पेक्युलेटिव फिक्शन क्या होता है, जो आप स्पेक्युलेट कर रहे हो कोई चीज फ्यूचर के बारे में, या साइबर पंक, ठीक है, जैसे कि न्यू रोमांस बहुत एक फेमस एग्जाम्पल है। ग्राफिक नॉवेल्स, फॉर एग्जाम्पल वॉचमैन। अब ग्राफिक नॉवेल्स पे मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। आजकल ग्राफिक नॉवेल से क्वेश्चंस आने का चांसेस बढ़ गए हैं, बिकॉज इट्स कंपैरेटिवली न्यू एंड इवॉल्विंग। ब्रिटिश और अमेरिकन ड्रामा पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट।
वी हैव सैम्यूल बेकेट, पिंटर, यूनेस्को, ये सारे लोग थिएटर ऑफ एब्सर्ड में हैं। या पॉलिटिकल थिएटर है, मेटा थिएटर, पोस्ट मॉडर्न थिएटर, या अमेरिकन पोस्ट मॉडर्न थिएटर है जिसमें ये लोग हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड किसने कॉइन किया था? मार्टिन एसलिन ने कॉइन किया था। इनकी बुक थी द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, 1961 की बुक थी। तो इन्होंने रेफर किया ऐसे प्लेस को जो ट्रेडिशनल प्लॉट स्ट्रक्चर को रिजेक्ट करते हैं, कॉज इफेक्ट वाला लॉजिक या कोहेरेंट डायलॉग्स को रिजेक्ट कर देते हैं। इंस्टेड क्या दिखाते हैं प्लेस में? एग्जिस्टेंशियल एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि क्या है ह्यूमन लाइफ, वही चल रहा है या तो मोनोटोनस चल रहा है, रोज वही एब्सर्डिटी है, क्यों जी रहे हैं, बस कमाओ फिर मर जाओ। तो इस तरह का चीज़ें हैं। सो इट्स वेरी सर्क्युलर, डायलॉग सर्क्युलर होंगे, मिनिमल एक्शन होगा, ब्लीक सेटिंग्स होंगी, इस तरह से। तो इन्होंने बात की थी, जैसे सैम्यूल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो हो गया, बहुत सारे ही प्लेस हैं बेकेट के, या पिंटर के हैं बर्थडे पार्टी, डम वेटर, यूनेस्को का है बॉल्ड सोप्रानो, जीन जेनेट के हैं द मेड्स या द बैल्कनी। सेकंड नंबर पे था पॉलिटिकल थिएटर। पॉलिटिकल थिएटर आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, जो सोशल या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इनजस्टिसेस को एक्सपोज करे, often using provocative techniques to awaken critical consciousness in the audience। तो ये बर्टोल्ट ब्रेक्ट का जो एपिक थिएटर था या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी, उससे इंस्पायर होता है। ठीक है, एलिनेशन इफेक्ट इसमें भी है, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, नॉन रियलिस्टिक सेटिंग्स। तो इसमें मेजर प्ले राइट्स आते हैं, एडवर्ड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्ले राइट है, उन्होंने वर्क लिखा था सेव्ड, और एडवर्ड बॉन्ड ने लियर भी लिखा है जिसमें शेक्सपियर को एक कैरेक्टर बना के ले आए हैं। फिर कैराइल चर्चिल हैं जिन्होंने लिखा टॉप गर्ल्स, क्लाउड 9, हावर्ड ब्रेंटन है जिन्होंने लिखा द रोमन्स इन ब्रिटेन। तो ये आ गया आपका सेकंड। थर्ड था मेटा थिएटर या पोस्ट मॉडर्न ड्रामा। मेटा थिएटर क्या है? अगेन मेटा थिएटर, जो थिएटर के बारे में, थिएटर को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेल्फ रेफरेंशियल थिएटर, जो कमेंट करता है अपनी ही नेचर पे कि मैं एक ड्रामा हूँ। पोस्ट मॉडर्न ड्रामा तो ब्लेंड कर देता है रियलिटी और फिक्शन को, हिस्ट्री और इन्वेंशन को, थिएटर और लाइफ को, ड्राइंग अटेंशन टू इट्स कंस्ट्रक्टेडनेस। तो देयर इज अ, आपको मिलेगा प्ले विद इन अ प्ले मिलेगा, कैरेक्टर्स आर अवेयर दैट दे आर इन अ प्ले, पैरोडी, पैस्टिश, आयरनी, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, हिस्टोरिकल री इमेजिनिंग ऑफ, या फिर इंटरटेक्चुअलिटी भी मिलेगी, फ्रैगमेंटेड सा स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे अगर आप देखो टॉम स्टॉपर्ड के प्लेस रोजेनक्रैंज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड, इट्स अ रीटेलिंग ऑफ हैमलेट, लेकिन माइनर कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे हावर्ड बार्कर है, उनका है सीन्स फ्रॉम एन एग्जीक्यूशन, वेरी कॉम्प्लेक्स ड्रामा, इट्स अबाउट आर्ट, इट्स अबाउट पावर, इट्स अबाउट फीमेल आर्टिस्ट। ठीक है, और फिर अगर हम अमेरिकन पोस्ट मॉडर्न थिएटर की बात करें तो यूएस में पोस्ट मॉडर्न थिएटर जो है वो इवोक करता है, वो इवॉल्व हुआ थ्रू द ब्लेंडिंग ऑफ रियलिज्म विद एब्स्ट्रैक्शन। उन्होंने सबवर्ट करना शुरू किया ऑफ नैरेटिव एक्सपेक्टेशंस। जो भी आप नैरेटिव से एक्सपेक्ट करोगे आपको उसका उल्टा मिलेगा। डीप इंटेरोगेशन ऑफ अमेरिकन मिथ्स, आइडेंटिटीज, इसमें डीकंस्ट्रक्शन है अमेरिकन ड्रीम की, जैसे कि सैम शेपर्ड हैं, ऑल्दो बहुत डेविड मैमेट हैं, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी मेजर प्ले राइट्स नहीं है, बट स्टिल हमें तो नाम डिस्कस करने ही करने हैं ना। लेट मी गो बैक टू द स्लाइड। या ठीक है, तो ये आ गए। उसके बाद है पोस्ट मॉडर्न पोएट्री। तो कौन कौन सी है? कन्फेशनल पोएट्री है, जैसे सिल्विया प्लाथ, एन सेक्सटन, रॉबेल ने लिखी कन्फेशनल, जो कन्फेस कर रहे हैं अपनी पर्सनल चीज़ों को। ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट आया अमीरी बराका का, मतलब नॉट जस्ट अमीरी बराका बट ही वाज वन ऑफ द मेजर फिगर्स। लैंग्वेज पोएट्री, परफॉर्मेंस एंड स्लैम पोएट्री। स्लैम पोएट्री किया है आपने कभी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? उसमें बड़ा एक रिदम होता है स्लैम पोएट्री में, एंड इवन व्हेन यू हैव टू clap, you don't really clap, you do this. So it's really fun and engaging. British postmodern poets जैसे टोनी हैरिसन है, कैरल एंड डफी है, साइमन आर्टेमेट जो पोइट लॉरिएट भी थे वेरी रिसेंट। ठीक है, तो अच्छा लैंग्वेज पोइट्री के बारे में आपको बताती हूँ। सो
कन्फेशनल पोएट्री तो आपको, आई थिंक यू ऑल नो, नाम से पता चल रहा है, फर्स्ट पर्सन वॉइस होगा, ऑटोबायोग्राफिकल मटेरियल होगा। और ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट BAM भी कहते हैं, जिसमें अमीरी बराकर ने फाउंड किया था। और ब्लैक नेशनलिज्म, अर्बन परफॉर्मेंस, कम्युनिटी एक्टिविज्म, इसमें और भी लोग थे जैसे निकी जियोविनी या सोनिया सैंचेज, वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू लैंग्वेज पोइट्री, तो एक एवेंट गार्ड अमेरिकन मूवमेंट आया, लैंग्वेज पोइट्री, LAN इज इक्वल टू लगा के। कब आया? 1970s और 80s में। इन्होंने फोकस किया ऑन लैंग्वेज इटसेल्फ, स्पीकर का कोई इमोशन नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं। इट एम टू डीकंस्ट्रक्ट कन्वेंशनल सिंटैक्स की जो एक ट्रेडिशनल तरीके से हम लिखते हैं, ग्रामर में एक मीनिंग मेकिंग होता है, उसको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। डिस्ट्रॉय नहीं, डीकंस्ट्रक्ट करना है। So they were influenced by post-structuralist theory, Derrida and Barthes, and they reacted against this confessional or lyric poetry जो आई थी, उसके अगेंस्ट ये रिएक्शन था। So they would disrupt the syntax, कोई क्लियर नैरेटिव नहीं होगा या आय नहीं होगा, कभी कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस को उल्टा कर देंगे, फ्रैगमेंटेशन ले आएंगे, इंटरटेक्सचुअलिटी डाल देंगे, रीडर का एक्टिव रोल होगा मीनिंग मेकिंग में। तो इसमें थे लोग जैसे चार्ल्स बर्नस्टेन, फिर रॉन सिलेमन, यू कैन जस्ट गो एंड सी कि कौन कौन थे, ठीक है। और स्लैम पोइट्री मैंने आपको बता दिया, एक लाइव सी ओरल फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है ये, और ये पॉपुलराइज हुई 80s और 90s में US में, ठीक है। कमिंग बैक टू द स्लाइड, तो अब मैंने मेजर राइटर्स और रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स भी लिखे हैं। ब्रिटिश पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं जैसे एंजेला कार्टर, जूलियन बार्न्स, इनके वर्क्स आप लोग देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स लिख दिए हैं, जैसे जेनेट विंटरसन का है ऑरेंजेस आर नॉट दी ओनली फ्रूट, सेक्सिंग द चेरी, बहुत बारी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में इन लोगों से। मैक इवान का, ही वाज अर्ली पोस्ट मॉडर्न राइटर। एलिमेंट्स जैसे कि द सीमेंट गार्डन, मार्टिन नमिस, लंडन फील्ड्स, मनी, वेरी इंपॉर्टेंट। A.S. बायट का पोजेशन, वेरी नाइस वर्क। टॉम स्टॉपर्ट का रोजेनक्रैंज एंड गिल्डसन आर डेड। फिर अमेरिकन की बात करें तो टॉमस पिंचन है, डॉन डिडिलो है, कर्ट वॉनिगर्ट का स्लॉटर हाउस 5 है, टोनी मॉरिसन, बिलावेड, एट्सेट्रा। पोस्ट कॉलोनियल और ग्लोबल वॉइस, जब हम पोस्ट मॉडर्न एज की बात करते हैं तो सिर्फ ब्रिटिश की बात करना लाजमी नहीं है, बिकॉज अब यहाँ पे ग्लोबल वॉइसेस आ गई थी, जैसे सलमान रश्दी हैं, जेम क्वेट्सी, अरुंधति रॉय, माइकल ओंडाटजी, इन लोगों के मोस्ट फेमस वर्क्स। चिनुआ एचबे, गुगी वा थियोगो, ये सब। फिर थियोरेटिकल इन्फ्लुएंसेस, जो थ्योरी से इन्फ्लुएंस हैं या क्रिटिक्स हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं पोस्ट मॉडर्न एज में। लियोटार्ड, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। फ्रेडरिक जेमसन का पोस्ट मॉडर्निज्म। बॉड्रिलार्ड का सिम्युलैक्रा एंड सिम्युलेशन। लिंडा हचियन का पोएटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ब्रायन मैकहेल का पोस्ट मॉडर्निस्ट फिक्शन। डेविड लॉज का द मोड्स ऑफ मॉडर्न राइटिंग। पैट्रिशिया वॉक का मेटाफिक्शन एज अ की मार्कर ऑफ पोस्ट मॉडर्न फिक्शन। So these are very very important, especially नेट में क्रिटिक्स थ्योरी से बहुत क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, प्लीज बी अवेयर, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म persists, it's increasingly absorbed into what critics term as post modern या मेटा मॉडर्निज्म। अब क्योंकि हम और आगे बढ़ गए हैं तो पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया है। लिटरेचर कंटिन्यूज टू ग्रैपल विद आइडेंटिटी, रिप्रेजेंटेशन, ट्रूथ, स्पेशली इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है, इन सारी चीज़ों पे अब ये बात करते हैं। So postmodernism has left behind a legacy of formal innovation, cultural critique, and pluralist voices that challenge binaries and hierarchies. तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया पोस्ट मॉडर्निज्म का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि क्या है पोस्ट मॉडर्निज्म और कौन सी थ्योरीज हैं जो पोस्ट मॉडर्निज्म में बहुत ज़रूरी हैं, राइट। और let me tell you about this course that we are beginning with. So here, from 20th of July, I am beginning with the new batch according to the changing patterns. Of course, study तो वही है, but speed,
रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कितना ज़्यादा आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, कितनी जल्दी कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, वो आई थिंक इट्स हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट with the increasing I should say लेवल ऑफ एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो इंटरेक्टिव सेशंस हम होएगा हमारा, और नोट्स दूंगी आपको, प्रैक्टिस करेंगे। अराउंड 15-20 डेज क्लासेस के बाद ही हम प्रैक्टिस अपना शुरू कर देंगे इस बार। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। क्यों? क्योंकि रीडिंग स्पीड बढ़ानी ही बढ़ानी है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ये नंबर है नीचे, प्लीज़ गेट इन टच विथ मी, टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप पे, एंड बुक योर सेल्फ द सीट्स। दीज आर the plans. The most suitable one should be the 6-month plan, in which you will get all of these things just for 6,999. So think about it, but don't think too much. Just get into it and शुरू से स्टार्ट करो तो बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कभी ना कभी किसी के साथ हो जाता है जो शुरू से नहीं स्टार्ट कर पाते, बट अगर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डिले कर रहे हो तो वो मत करना। प्लीज़ बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, ताकि कोई भी लैगिंग बिहाइंड ना हो। ठीक है? डिसाइड एंड लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।